ओके। तो हमने जो है आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली अच्छे से, है ना, उनके रिजल्ट पढ़ ली, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया कि इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स है तो उससे क्या क्या हमारे पास चीजें होती हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं इनको। तो हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। उससे पहले एक डिफिनीशन पढ़ेंगे, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। क्या होती है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, पता है? एनीवन, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो लेट्स डिफाइन एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? So let's define one thing. So we are going to discuss about your characteristic and minimal polynomial, and let's define first annihilating polynomial क्या होता है annihilating polynomial of a matrix. Okay. So a polynomial affects, let's say a polynomial effect is said to be an annihilating polynomial of a of a matrix A if I'm putting in the place of X as a matrix A, this is FA, you will get a null matrix, a zero matrix you will get. So a polynomial effect is said to be annihilating polynomial of a matrix A if FA is equals to zero. ठीक है, you will get a null matrix, a zero matrix for this. If I'm just saying the fx is there, if fx is, I'm just taking here x square plus the 3x plus the 1. Okay, then if this fa means if you are putting in the place of x is a, so it will be a square plus the 3 of a and plus identity, because in the case of matrix we will use identity in the place of 1. ठीक है, तो this a square plus 3a plus I, and it is equal to 0. If it is equal to 0, ठीक है, then this fx is a annihilating polynomial of A, है ना, इस A मैट्रिक्स की annihilating polynomial है। ओके, नाउ वी कैन सी कि अगर मान लो हमने कहा कि fx जो है A के annihilating polynomial है, तो fx में जब हम A पुट करते हैं किसी तो वो दैट बिकम्स जीरो। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, सपोज दैट हमने एक gx एक पॉलिनोमियल ले लिया, उसमें हमने fx मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी वी फॉर्म्ड अनदर पॉलिनोमियल, एक हमको दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बट इट विल बी वॉट एवर दिस ga, इट डजेंट मैटर, बट इफ इट इज fa is gives zero, it gives zero, so it will become whole thing will be zero. It means that for a matrix, if there exists a annihilating polynomial, then there exists infinitely many
analytic polynomials for that matrix. Okay, so you can just say remark, you can write a remark here. That is your let fx be an annihilating polynomial of A, and so just take G and Gf be any other polynomial, then this fx into Gf is also an annihilating polynomial for A. अब आप लोग बताइए कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, हमने एक अभी पढ़ेंगे आगे चल के कि जो केले हैमिल्टन थ्योरम है वो ये कहती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको ए सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई इन द सेंस इट बिकम जीरो. So the characteristic equation is a annihilating polynomial for the matrix A itself. Okay, so then fx and gx is also annihilating polynomial of A. Is it clear? So you can clearly prove, if you want to prove this, you can also see, clearly. If you are just taking fa, clearly you are just looking fx is the annihilating polynomial, this fa is equals to 0, it is given. If I am just taking consider this hx is another polynomial which has fx into gx, the product of these two polynomials. Okay, so clearly if you want to find HA, this HA will be what? FA into GA, है ना? And that will be equal to 0 into this GA, and you will get this is 0. ठीक है, so this implies for this matrix A, this HA is again 0, so this implies this HX, yeah, you can say fx into gx is also an annihilating polynomial. Okay, annihilating polynomial of A. Okay, so it means that there are infinitely many annihilating polynomials for a given annihilating polynomial. You can just also you can say by the remark. So it is clear. So it is clear that we can construct infinitely annihilating polynomial. By using annihilating polynomial. Okay, so this is about the एनालिटिक पॉलीमर. तो अब समझ में आ गया कि एनालिटिक पॉलीमर क्या होता है. ऐसी पॉलीमर जिसको ए सेटिस्फाई करता हो उसको एनालिटिक पॉलीमर कहते हैं. ओके, so let's define the minimal polynomial of the linear operator or a matrix. Okay, so minimal polynomial क्या होता है?
दिस इज अ एनालिटिक पॉलिनोमियल दैट्स अ मिनिमम डिग्री, है ना। मतलब एक मैट्रिक्स की एनालिटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मिनिमम हो तो उसको हम मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लेट अस राइट हियर मिनिमल पॉलिनोमियल, minimal polynomial of a linear operator of matrix, you can say minimal polynomial or a linear operator of a matrix. Okay, so clearly you can say कि the minimal of matrix या minimal polynomial is denoted by mx of a linear operator t is defined as is defined to be monic. What meaning of monic? The इसका जो highest degree coefficient है that should be equal to 1. Okay, to be monic polynomial of lowest degree. Lowest degree of which this t is a root. वही मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, रूट मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, चाहे टी की बात करें चाहे वो हम मैट्रिक्स की बात करें, दैट आल्सो। तो इट मींस दैट एनालिटिक पॉलिनोमियल विच इज मोनिक, मोनिक इन द सेंस कि उसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज योर 1, है ना। जैसे कि हम अगर हम जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 3x² + 4x, तो ये मोनिक नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो कोफिशिएंट है दैट इज योर 3। ओके, so that's the coefficient like this is your x² + 1, ये मोनिक है। x³ + 2x² + 3x + 5 ये हमारा मोनिक है, ठीक है। और अगर इसको टी सेटिस्फाई कर रहा है या मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है और इसकी लोएस्ट डिग्री होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर और अ मैट्रिक्स। तो a minimal polynomial mx of a linear operator t is defined to be monic polynomial of the lowest degree of which t is a root, जिसका t क्या है, रूट है, t उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है उस t के लिए या फिर उस मैट्रिक्स के लिए वो एनालिटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो यू कैन सी एक चीज तो हमें पता है, so you can just write we know that this this is if A is a matrix of linear operator, matrix of T, ठीक है, and fx, and this is fx be any polynomial then this is fa will be the matrix of the linear operator, the matrix of ft। देखिए जब हम टी रखेंगे तो वी विल गेट अ ऑपरेटर, अ लीनियर ऑपरेटर आपको मिलेगा। और जब आपको एफ ए रखोगे तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी एफ ए, दैट विल बी द मैट्रिक्स फॉर एफ टी एज वेल। ओके, तो अगर हमें पास एफ टी कहीं गिवन है तो यू कैन फॉर्म
a matrix for that when finding the matrix of T as well. Okay. So in particular, you can say you can say if ft is just equal to 0 if and only if and only if fa is just equal to 0. Therefore we can say that capital T and A has same minimal polynomial, has same minimal polynomial. तो इट मीन्स दैट कि हम अगर मिनिमल पॉलिनोमियल को खोज रहे हैं तो हम मैट्रिक्स फॉर्म कर लें उस लीनियर ऑपरेटर की और उससे हम मिनिमल पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हमेशा आपको ध्यान रखना है एज अ रिजल्ट, एज अ थ्योरम। यू कैन रिमेम्बर दिस थ्योरम की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है दैट is a annihilating polynomial, yeah, that will be this matrix or the linear operator will satisfy, है ना, characteristic equation. Okay, so let's write a result one. तो इसको बोलते हैं केले हैमिल्टन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, its characteristic polynomial, characteristic polynomial. Yeah, here you can say like this, if Cx, I'm denoting if Cx is the characteristic polynomial, polynomial of a matrix A, okay, then we have then C of A is just equal to null matrix, zero matrix. Okay, or we can say also it is a annihilating polynomial. You can say here this characteristic polynomial is an annihilating polynomial. तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में तो हम जानते ही, ये निकालना भी जानते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल अब हमको फाइंड करना होगा कि भाई हमको लोएस्ट डिग्री का एनालिटिक पॉलिनोमियल मिल जाए फॉर दैट मैट्रिक्स, फॉर दैट लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो फ्रॉम हेयर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है और जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है दोनों के दोनों एनालिटिक पॉलिनोमियल होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो हमारे पास उस मैट्रिक्स को हम a माइनस लेमडा आई जो डिटरमिनेंट से निकालते थे वही फॉर्मेट है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास निकलेगी और इक्वेशन जब निकल आएगी तो वहां से वही पॉलिनोमियल बन जाएगा। a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज योर पॉलिनोमियल, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब मेरा जो नेक्स्ट रहेगा वो हमें मिनिमल पॉलिनोमियल को फाइंड करना रहेगा कि हमारे पास
एनालिटिक पॉलिनोमियल हो और लोएस्ट डिग्री का हो, है ना, तो उसको हम मिनिमल पॉलिनोमियल कहेंगे। बाकी ये आपको पता ही चल गया कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसको भी मैट्रिक्स इटसेल्फ सेटिस्फाई करता है। तो इसका बहुत यूज है। ये आप रिजल्ट का प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जहां पर हम इस कैरेक्टरिस्टिक जीस वाले जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है इसका यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और ये पूछी भी गई है CSIR नेट के अंदर, आती ही आती है, एक समझ लो एक प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। लास्ट एग्जाम में भी एक प्रॉब्लम थी। तो ये आपको कैसे यूज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। Sometimes they ask about the inverses, sometimes they ask about the higher degree, higher इंटीग्रल पावर, है ना, ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। उस मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। उसमें ए की जगह पर हम एक्स की जगह पर हम ए रख देते हैं, वी विल गेट एन रिलेशन बिटवीन सम डिग्री, एंड उसका यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, and if it gives the characteristic polynomial of a matrix A, then PA is equal to 0. Okay, so next we using by this result, मतलब you know that कि अगर हमारे पास कोई कोई मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर की है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा, n, है ना, ये चीज हमें पता है। तो उसी को देखते हुए we can have another result, important result, so you can say, ये समझ में आ गया ना सबको यहाँ तक का? प्लीज लेट मी नो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, और लीनियर वो एनालिटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया, है ना, कैले हैमिल्टन थ्योरम भी हम समझ गए। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। रिजल्ट नंबर 2। so uh, if this A is a n by n matrix and this is K which is greater or equal to n, it means that K is n number, is a positive integer which is greater or equal to n, is a positive integer, then this A की power K can be expressed as the linear combination of of I A, A square, A Q and so on up to e to power n minus। ओके, सो कैसे हम कर सकते हैं, लेट अस सी कि हम कैसे उस लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हमने एक चीज पढ़ा कि अगर ए हमारे पास n बाई n की मैट्रिक्स है, तो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ओके, so if we satisfy it, if I have to think, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हमारे पास वो ए सेटिस्फाई करते, इट मीन दिस सी ए इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो फ्रॉम हेयर यू हैव सम लाइक दिस, अगर हमारे पास हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से है, तो वी कैन जस्ट से दिस इज ए टू पावर n प्लस दिस इज योर a1 a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, प्लस a2 a की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू दिस इज योर an to a की पावर, लास्ट में टर्म आप जीरो कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सब बोलते हैं। सो
दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास यू कैन फाइंड ए की पावर एन इजीली, है ना। आप ए की पावर एन आप इजीली निकाल सकते हो, दैट विल बी, इसको अगर हम आइडेंटिटी कह रहे हैं तो दिस विल बी योर ए एन ऑफ आई इज समवेयर, दिस इज ए एन ऑफ आई, ये माइनस का हो जाए कोई बात नहीं, दिस इज माइनस ऑफ ए एन माइनस वन ऑफ ए यहाँ पर रहा होगा, एंड दिस इज सपोज इट माइनस ऑफ दिस इज योर लास्ट में जो बचेगा ए वन ए की पावर एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस ए एन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन सच ऑल दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑफ टू ए की पावर एन माइनस। ओके, एंड दे आर सेइंग कि अगर हमारे पास a की पावर k है एंड k इज योर ग्रेटर और इक्वल टू n, तो वी कैन इजीली सी कि जो a की पावर, अगर मान लो मान लो हमने कहा कि a बराबर k है, तो k बराबर n है, तो इसका मतलब है दिस इज an, और an तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अगर हमने कहा कि k जो हमारे पास है वो हमें सपोज दैट k इक्वल टू n प्लस थ्री ले लिया है ना, सपोज दैट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी हैपन, इट विल बी इक्वल टू n प्लस थ्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए एन इंटू ए क्यूब, और फिर ए एन की जगह पर हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये एक्सप्रेशन यूज करने के बाद जब हम ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर फिर से हमारे पास ए की पावर एन यूज आया वहां पर एक्सप्रेशन के अंदर, तो वी कैन अगेन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास n से बड़ी या n के इक्वल कोई भी पावर क्यों ना हो, कोई भी एक्सपोनेंट क्यों ना हो, यू कैन एबल टू राइट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन these matrices a square and a n की पावर n minus 2 up to n minus 2. And how many matrices are these? These are n matrices. ओके, तो एवरी मैट्रिसेस विच हैव द ऑर्डर, तो इसका मतलब अब इसी का यूज करके आपको हम बता रहे हैं ना, प्रॉब्लम पूछी जाती है कि आपसे मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया उसने, एक छोटी सी मैट्रिक्स दे दिया, और आपसे पूछेगा ए की पावर 20 बताइए क्या होगा। अब जिसको ये चीज नहीं पता होगी, कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में नहीं पता होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसको सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स, तो आप क्या करोगे, ए मल्टीप्लाई करोगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं, इवन दो जब हमको बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में नहीं थी तो हमने भी कई बार ऐसा करते थे। मान लो ए की पावर फाइव फाइंड करना था, तो पहले क्या करते थे, ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, है ना, ए की पावर फोर निकाल लिया, एक पावर फोर जैसे निकला उसमें हम एक पावर फोर इंटू ए मल्टीप्लाई कराई, विल गेट दिस ए की पावर फाइव। ओके, और दिस इज टू मच टाइम, और समटाइम्स आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अगर बड़ी मैट्रिक्स हुई और उस तरीके से, तो हमारा काम क्या होता है, वी विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हम बात कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जैसे हमने निकाल लिया, दैट विल सेटिस्फाई बाय ए, ठीक है, तो ए इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो अगर मान लो इसकी डिग्री हमारे पास थ्री हुई, तो वी गेट अ थ्री ऑर्डर, है ना, मतलब थ्री ऑर्डर हमको पॉलिनोमियल मिलेगी उसमें। इसका मतलब ए की पावर क्यूब हम इजिली ए स्क्वायर और ए की मदद से निकाल सकते हैं, और जैसे हमारे पास ए क्यूब निकल आया, ए की पावर फोर निकाल सकते हैं, ए की पावर फोर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो हम रिड्यूस कर लेते हैं, और रिड्यूस करने के बाद हम देखेंगे कि वी विल इजीली गेट द आंसर। ओके, तो अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करने से बचना है आपको, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करना है। क्लियर? प्लीज यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। आप लोग हैं ना ऑनलाइन, कि हम बोल ही रहे हैं बस। ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट नंबर थर्ड, कि let A be a
n by n matrix and this W is the spanning set a to power n such that n is greater or equal to 0. Okay, this is some space, इसमें मैट्रिसेस है a की पावर n, इससे स्पैन हो रही है ना। a की पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी, फिर उसके बाद तुम्हारे पास n up to n minus 1, then dimension of W is less or equal to n, मतलब n से ज्यादा उसके अंदर जनरेटिंग मैट्रिसेस नहीं हो सकती। ओके अभी करेंगे, ओके ये रिजल्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस पर प्रॉब्लम भी करेंगे। This is A, B n by n matrix and W is the spanning set. Okay, so this is the dimension of W is always less or equal. Dimension of W मतलब कि ये जो हमने W स्पेस डिफाइन करा है उसमें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए स्क्वायर ए, ये सारी मैट्रिसेस पड़ी हुई है अप टू इन्फिनिटी, ठीक। उन सारी मैट्रिसेस को हम जनरेट कर सकते हैं किससे, ये हमने बताया नहीं था, जनरेटिंग सेट आई ए स्क्वायर अप टू ए एन माइनस, है ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास मैट्रिसेस हैं दीज आर जनरेटिंग मैट्रिसेस, और इस जनरेटिंग मैट्रिसेस को हम रिड्यूस करके एलआई वेक्टर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर एन है, एन से ज्यादा हमारे पास मैट्रिसेस हमको यूज नहीं करना है, मैट्रिसेस को यूज नहीं करना है, that will be the only possibility. Okay, so dimension of W will be less or equal to n. Next result we can just write here, if A is a n by n non-singular matrix, then this is a to power minus n, है ना, can be expressed as the linear combination of, this is your a square up to a to power m minus, sorry n minus, this is your n minus 1. Okay, for all positive integers m, for all पॉजिटिव। तो अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसे भी हम आई ए और ए स्क्वायर और ए की पावर एन माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्लियर? लेट्स राइट अनदर रिजल्ट, रिजल्ट 5, let this is A be a n by n non-singular मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, एंड दिस दिस W, अब यहाँ पर तुमने देखा, यहाँ पर हमने इंटीजर ले लिया, यहाँ पर n फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर, वहां पर पॉजिटिव इंटीजर था, जो हमारे पास थर्ड रिजल्ट के अंदर जो हमने स्पेस लिया था उसमें n इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सम पॉजिटिव सम नॉन निगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर हमने इंटीजर ले लिया, निगेटिव इंटीजर भी, क्योंकि हम इस रिजल्ट से, फोर्थ रिजल्ट से ये देख पा रहे हैं कि अगर निगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं तो उन्हें भी हम आई ए स्क्वायर ए की पावर एन माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सारे जो मैट्रिक्स ये स्पेस बनेगा इन मैट्रिसेस का, उसकी डायमेंशन लेस और इक्वल टू एन ही होगी। तो डायमेंशन ऑफ W इज लेस और इक्वल टू एन। क्लियर? एक रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर
6, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी आर टू रिमेंबर दिस, कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है, द मिनिमल पॉलिनोमियल of a matrix is unique, is unique, मतलब एग्जिस्ट करती है तो वो एक ही है, ठीक है। जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, ओके। तो वी हैव दिस रिजल्ट, विच टाइम है 3 मिनट, तो वी कैन एग्जाम्पल, ठीक है। कोमल ने बोला है कि एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो आपको इस तरीके का एग्जाम्पल। ओके, अभी हमने एक मैट्रिक्स लिखी थी, उसी से देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, मान लो सपोज दैट दिस वन है ना, दिस इज 4 1 -1 एंड 2 5 -2, यही तो थी। अभी ऊपर हमने करा था, इसमें नहीं था, ये दूसरे में मैट्रिक्स नहीं, ये अभी देखा था ना। ये मैट्रिक्स थी 2 5 -2 एंड 1 1 2, ये थी है ना। इसको ले लेते हैं, इसका आप कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूले में ले लेंगे ये वाला, ठीक है। तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सपोज दैट दिस इज, तो और क्या था, 11 39 एंड 45, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास 1 1 2 आ गया, ठीक। अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉलम में हमने लिखा, दिस इज योर सी एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11 ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर प्लस का 39 ऑफ एक्स माइनस का 45, ये कैरेक्टरिस्टिक कॉलम है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन दैट सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस का 11 ऑफ ए स्क्वायर प्लस का 39 ऑफ ए एंड माइनस का 45 माइनस ऑफ 45 आई, ओके। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड ए की पावर 5, ठीक है, फाइंड ए की पावर 5, तो आपको क्या करना है, यू जस्ट से ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, क्योंकि यहाँ से आप ए क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये ए क्यूब आप निकाल सकते हो यहाँ से। दिस इज 11 ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 39 ऑफ ए एंड माइनस का 45 ऑफ आई, ये माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, दिस इज ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे 11 ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस 39 प्लस का 39 ऑफ, सॉरी नॉट, माइनस का हो जाएगा 39 ऑफ ए and this is plus of 45 of I. Okay, when you multiply a inside, you will get, this is your 11 of a की power 4 minus का 39 of a cube and plus का 45 of a square, ठीक। अब फिर से आप इस a स्क्वायर a की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, a इंटू ए क्यूब की जगह फिर से यही चीज यूज कर सकते हो, 11 ऑफ a स्क्वायर एंड माइनस का 39 ऑफ a एंड प्लस का 45 ऑफ आई, ठीक। एंड माइनस का दिस इज 39, दिस इज ए